Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to teach you a new topic, that is the shade NCERT book Honeycomb, class 7. So, dear student, in this chapter we are going to read more about the shade written by Frank Flynn. Okay, so let us know more about the poet Frank Flynn. His date of birth is 1906 and he was born in Sydney, Australia, and he died on 29 July 2000. And it is a Northern Territory based Australian doctor, ophthalmologist, author and a missionary priest. He is notable for his contribution to religion, medicine and aboriginal welfare. Right? So let us read the poem. Do you know what is a shade? I believe that you know the shade. What is a shade? That is a cow shade, a tool shade, a wood shade. For example, you might have you might be having shade on your roof also, because people used to rest in the shade when the sun is so warm and hot. So they used to sit in the shade, जहाँ पे छाया आपको मिलता है, right? So it's a small room away from the main house for storing or keeping things, animals, tools, vehicles, etc. So you can ask your partner if he or she has ever seen a shade. I think everyone has seen. And let her describe. Okay, now read the poem. Let us read the poem. The poet says, "There's a shade at the bottom of our garden, with a spider web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and listen. I'll open that door one day." So in this para, the poet is saying that there's a shade at the bottom of our garden. That bottom of our garden, that means somewhere far away from, not so far, but it is just near about the home of his poet's house. And bottom of our garden is like गार्डन के एक छोर पे, गार्डन के एक कोने पे जो है एक शेड बना हुआ है उनके यहाँ, जहाँ पे स्पाइडर्स वेब, जो मकड़ी का जाल होता है, वो चारों तरफ दरवाज़ों पे लटक रहा होता है. विथ अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर. नाउ द हाइंस आर रस्टी एंड क्रिक इन द विंड. और उस दरवाजे में जो हाइंस मीन्स कब्जा, जो वो स्टील आयरन का होता है, लोहे का जो कब्जा होता है, जिसमें हम जिसके सहारे से हम डोर्स को हैंग करते हैं इन द डोर शेप. दरवाजे का जो जगह होता है उसमें हम दरवाजे को हैंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइंस दैट आर रस्टी. रस्टी मीन्स जंग लगा हुआ. ओके. एंड क्रीक इन द विंड. एंड वेन एवर द विंड इज़ ब्लोइंग, इट साउंड्स क्रीक. वो जो चरमराहट की आवाज़ जो आती है, it happens almostly when the hinds are not properly oiled. उसमें अगर आप उसका अगर आप मेंटेनेंस नहीं करोगे, उसमें सॉरी ऑयल नहीं डालोगे, तो इट विल बिकम रस्टी, राइट? लाइक एज द आयरन रॉड्स बिकम रस्टी. सो द पोएट इज सेइंग कि इट्स क्रीक इन द विंड. जब भी हवा तेज़ चलती है या बहती है, तो वो उसमें से चरमराहट की आवाज़ आती है. एंड ही लिसन्स टू इट वेन एवर ही इज़ लाइंग ऑन द बेड. वो अपने बेड पे जब लेटे होते हैं तो वो इन आवाज़ों को सुनते हैं. एंड ही डिसाइड्स, वो डिसाइड करते हैं कि एक दिन वो जा कर के उन दरवाज़ों को ज़रूर खोलेंगे. As you can see here in the picture, that
how the shade has been shown. Okay, this is the shade talking about, this is the door the poet is talking about. Okay. Now let us move ahead and read the next part of this poem. There is a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. I often think there is someone staring at me each time that I pass. I'll peep through that window one day. In the second para, the poet is saying that the old window which is hanging in that window space is dusty. धूल से भरा हुआ है, चारों तरफ जिधर देखो धूल ही धूल है उसके साइड में. एंड उसमें जो पेन्स लगे हुए हैं, जो ग्लासेस लगे हुए हैं, लाइक यू कैन सी इन योर क्लासरूम, इफ़ यू रिमेंबर दैट द क्लासरूम विंडो इज़ ऑल्सो हैविंग द ग्लासेस पेन, राइट. सो उसमें से जो 3 ग्लास है वो टूटे हुए हैं और उनको ऐसा लगता ही ऑफन थिंक्स लाइक जब वो उस शेड के पास से क्रॉस होते हैं, देन ही फील्स लाइक समवन इज स्टेयरिंग. स्टेयरिंग मतलब कोई घूर रहा है उनको. स्टेयरिंग मीन्स घूरना. ओके, क्रैक्ड मीन्स टूटा हुआ, डस्टी मीन्स धूल भरा हुआ. ओके, सो ही थिंक्स ऑफन मतलब बार बार. सेल्डम मीन्स कभी कभार. ओके, सो जब भी वो कभी उस जगह से वो पास करते हैं तो उनको ऐसा लगता है दैट समवन इज स्टेयरिंग एट मी. तो उनको ऐसा लगता है जैसे कोई घूर रहा हो. एंड देन ही डिसाइड्स कि आई पीप थ्रू. पीप मीन्स झांकना. सो ही डिसाइड्स दैट हिल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे. एक दिन उस विंडो से वो झांक करके अंदर देखेंगे कि सच में आई मीन समवन इज स्टेयरिंग एट हिम. कोई सच में अंदर है जो उनको देख रहा है, देखने की कोशिश कर रहा है, झांक मतलब घूरते रहता है, लाइक दैट. ओके, नाउ लेट अस रीड द अनदर स्टैंजा. माय ब्रदर सेज देयर इज अ घोस्ट इन द शेड who hides under the rotten floorboards, and if I ever dare to set a foot inside, he'll jump out and chop off my head. But I'll take a peek one day. Now, in this stanza, what a poet is saying that उसका बड़ा भाई जो है वो बोलता है कि इस शेड में जो है घोस्ट रहता है. घोस्ट मीन्स भूत, राइट. As such, I do not believe in these all things that there is a ghost. Okay, it's only just a एक बहम होता है, एक डर होता है which जब आप सोचोगे तो डर लगेगा. when you are not thinking you won't scare. alright, so he says कि उसका भाई बोलता है, पोइट के बड़े भाई बोलते हैं कि इस शेड के अंदर में घोस्ट रहता है जो कि अंदर में छिपा होता है. एक फ्लोर बोर्ड है जो कि रॉटन है, सड़ा हुआ. रॉटन मीन्स सड़ा हुआ है. उसके अंदर में वो छुपा रहता है, राइट. एंड ही सेज ऑल्सो दैट इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड. और वो ऐसा भी बोलता है कि अगर मैंने कभी हिम्मत की, कभी डेयर मीन्स हिम्मत, अगर एवर मीन्स कभी. सो अगर मैंने कभी हिम्मत की अपने पैर को अंदर डालने की, शेड के अंदर जाने की, तो ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड. तो वो मेरे ऊपर जंप करेगा और मेरे सर को धड़ से अलग कर देगा. चॉप मीन्स काट के हटा देना, राइट. बट आई टेक अ पीक वन डे. बट स्टिल द पोइट इज सो मच डिटरमाइंड दैट ही विल टेक अ पीक वन डे. मतलब पोइट बोल रहा है कि फिर भी मैं एक दिन उसके अंदर झांकना चाहूँगा. पीक मीन्स झांकना. I know that there is not really a ghost. My brother tells lies to keep the shade for his den. There is not anyone stirring or making strange noises, and the spider has been gone from his babe. Since I don't know when, I'll go into that shade one day soon, but not just yet. In the final stanza of this poem, द पोइट सेज कि उसको मालूम है कि ऐसा कुछ सच में घोस्ट वगैरह होता नहीं है, राइट. आई टोल्ड यू दैट आई डोंट बिलीव. इवन द पोइट, इवन द पर्सन्स हु आर वेरी मच एजुकेटेड, हु आर लर्नड, यू नो, and who believes in education will not believe in
such things, such silly things that ghosts are existing in this world, right? So वो बोलता है, पोएट बोलते हैं कि उनको मालूम है कि सच में ऐसा कुछ होता नहीं है, और उसका भाई जो है उससे झूठ बोलता है ताकि वो वो उसके उस शेड में नहीं जाए, उसके den में नहीं जाए। और उसको ये भी मालूम है दैट देयर इज़ नॉट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेज। और साथ ही साथ पोइट ये भी बताते हैं कि उनको ये भी मालूम है कि इस शेड के अंदर में कोई अंदर नहीं रहता है, कोई ऐसी आवाज़ें, स्ट्रेंज आवाज़ें नहीं आती है जो उनको डरा सके। ओके, दिस ऑल आर द फेबल्स, ये ऐसे किंवदंती कहानियाँ हैं जो उसको डराने के लिए बताई जाती है। साथ ही साथ पोइट यह भी बोलते हैं एंड द स्पाइडर हैज़ बिन गॉन फ्रॉम हिज बेब, और जो स्पाइडर है, मकड़ी है, वो मकड़ी का जो जाल है, बेब मीन्स मकड़ी का जाल, स्पाइडर बेब मीन्स मकड़ी का जाल एंड स्पाइडर मीन्स मकड़ी। तो मकड़ियाँ जो है वो अपने जालों से निकल के कभी की जा चुकी है, उसको मालूम नहीं है वो कब गई हैं, सिंस आई डोंट नो व्हेन दे हैव डिपार्टेड, कब वो जा चुकी हैं उसको ये भी नहीं मालूम है। बट ही सेज इन द एंड दैट आई विल गो इनटू दैट शेड वन डे सून। बट स्टिल जो पोएट है ही इज़ सो मच डिटरमाइंड दैट वो जाएगा एक दिन, बहुत जल्दी जाएगा, बट नॉट जस्ट इट, लेकिन अभी नहीं जाएगा। द पोएम ends here, dear students, and this poem is written by Franklin, and I have told you more about the Franklin, so I hope and I believe that you have understood the whole poem completely, and you have to write down the summarization of this poem, and next day we'll deal the exercise of this poem. So till then, take care, bye, and have a nice day. Thank you.